session for grade 3. Subject is SS. We are discussing chapter number 7, Fire, Farming and the Wheel. And this is my session number 2 for this chapter. In previous session, that is session number 1, we learned about the introduction to this chapter. That is what we are going to do, what we are going to learn, what we are going to discuss in this chapter and why is it important, that we learned. Then we also learned about the discovery of fire, in which I explained to you that the early human beings might have observed the fire in the forest, which might have started accidentally, but slowly and gradually they learned that this fire was very useful to them. There were 3 reasons why fire might have started. First reason is that due to the hot summers, the dry leaves, twigs or the grass might have caught fire and fire might have started. Second, due to the lightning, fire might have started. Third one, I told you that it might be that while striking 2 stones together to make the edges sharp, the spark which came out from that fell on the dry leaf and fire might have started. So these were the 3 reasons. Then why did they use fire? To keep themselves warm, to cook the food and to protect themselves from wild animals. Fire also gave them light and heat. So when it is dark in the evening or night, they used fire for light also. Correct? So these were the uses of fire as I told you. Then I told you that accidentally they tasted the flesh which was cooked in the fire and they found that the cooked flesh is better in taste and easy to be chewed. So then they learned that they should try cooking the food. And all this happened because of the discovery of fire. So in today's session, kids, we are going to discuss about the beginning of farming. How did this farming start? How did early people learn farming? We will learn about that in today's session. It is there in textbook page number 262. So let us start the session. Beginning of farming. You have read earlier that early human beings moved from place to place in search of food. Correct? As I told you, they were hunters and gatherers. The men went for hunting and the women and the children around the area, they collected all the food and gathered it for their use. But when the food was over in the nearby area, they had to shift from one place to another. Correct? In search of food. They were hunter-gatherers. How did they become farmers? So that time they were called hunter-gatherers. So then how did they become farmer then? Hunter-gatherer में से farmer कैसे बने होंगे? So let us see. As hunter-gatherers wandered from place one to another, they noticed plants growing in the wild. As they were roaming, wandering means going from one place to another without any aim. कोई एम नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी इधर से उधर जो घूमते रहते हैं ना, उसे wanderers कहते हैं. क्या कहते हैं? Wanderers. Correct? So they were wanderers. So while moving from place to place, they observed that in the wild means the forest. Wild forest. तो यहाँ जंगल में प्लांट्स को ग्रो होते हुए उन्होंने ऑब्जर्व किया होगा. कभी कभी उन्होंने ये भी देखा होगा कि कोई प्लांट अगर उस एरिया में छोटा सा है तो आफ्टर सम डेज व्हेन दे सी इट बिकम्स बिगर, बड़ा हो जाता है. तो ये सारी चीजें उन्होंने ऑब्जर्व की थी. राइट? दे न्यू दैट दीज प्लांट्स गेव सीड्स व्हिच कुड बी ईटन. देयर वर सम प्लांट्स एज आई टोल्ड यू दे एट फ्रूट्स, करेक्ट, then vegetables, but all these things initially they were eating raw. After they discovered fire, they started cooking them. But from where did they get these vegetables, fruits, seeds? Seeds मतलब
जो दाने होते हैं ना उसे सीड कहते हैं। आप ग्राउंडनट खाते हो ना, मूंगफली, तो उसका वो सीड ही होता है ना जो आप खाते हो। फिर ग्रीन पीस खाते हो, मटर, ग्रीन कलर का छोटा सा, यस, तो वो मटर है, वो क्या है, वो सीड ही है, करेक्ट, बीज है। तो ये सारे सीड्स जो है वो प्लांट्स पर ग्रो करते हैं। ओके, सो प्लांट्स गिव देम सीड्स व्हिच कुड बी ईटन। तो ये उन्हें पता था कि उन प्लांट्स में से उन्हें सीड मिलते हैं जो वो खा सकते हैं। Perhaps they noticed that new plants grew where the seeds fell. अब उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि कुछ सीड्स जो है when they fall on the ground, some seeds germinate. Germinate का मतलब क्या है? Growing of new plant और new baby plant, जिसको हम sapling बोलते हैं, from a seed. छोटे से सीड में से एक प्लांट ग्रो होता है, छोटा सा प्लांट जिसे सैपलिंग बोलते हैं। तो उस प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं, साइंस में आपने पढ़ा होगा, करेक्ट। सो दिस प्रोसेस दे हैव नोटिस्ड, उन्होंने ये नोटिस किया था। समटाइम्स फॉर एग्जांपल यू टेक एप्पल, एप्पल जब आप खाते हो तो उसमें से छोटा सा सीड निकलता है। दे माइट हैव observed that when they ate apple and they threw the seed, उस सीड को उन्होंने फेंक दिया, तो मे बी उधर उसको राइट क्लाइमेट टेम्परेचर मिला होगा, तो वो सीड वहां जर्मिनेट होके वहां पर कुछ सालों बाद एक एप्पल का ट्री ग्रो हो गया होगा। मैंगो आप ले लो, मैंगो के बीच में इतना बड़ा सा सीड होता है जिसको हम गुठली कहते हैं, उसको अगर हम ग्रो करें तो उसमें से मैंगो का ट्री उगता है। तो उन्होंने भी ये चीज ऑब्जर्व की होगी ना, राइट। सो आप भी कभी कभी करते हो, कुछ सीड्स को पर्पसली ग्रो करते हो, स्पेशली नाउ व्हेन यू आर हैविंग अ लॉट ऑफ फ्री टाइम, यू कैन एक्सपेरिमेंट दैट, करेक्ट। तो उन्होंने भी ये नोटिस किया कि wherever the seed are fallen, new plants grow from these seed. So early human beings may have tried dropping seeds on the soft ground. तो पहले वो एक्सीडेंटली फेंकते थे और वहां ग्रो हो जाता था। फिर when they started observing this, जैसे जैसे ऑब्जर्व करते थे, what they did, some seeds they purposely dropped on the soft ground. Purposely, जानबूझकर सॉफ्ट ग्राउंड के ऊपर उन्होंने वो सीड डाली। पहले एक्सीडेंटली हुई थी, अब पर्पसली, ओके। Purposely they drop these seeds on the soft ground. Soft ground क्यों? ताकि वो इजीली ग्राउंड के अंदर चले जाए। अगर हार्ड है तो इसका मतलब दो हो सकते हैं चीजें। हार्ड है तो पहली चीज कि वो सीड अंदर नहीं जाएगी मिट्टी के अंदर। दूसरी, अगर वो हार्ड है इसका मतलब उसमें पानी नहीं है, तो ही वो हार्ड होगी, करेक्ट। सो देयर वर टू रीजन कि सॉफ्ट होनी चाहिए, ये ग्राउंड मस्ट बी सॉफ्ट, तो सीड इजीली अंदर भी जाएगी और उसे मॉइस्चर भी मिलेगा। These seeds may have sprouted. Sprouted means उसमें से नए प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो गए into a new plant over time. तो सीड में से स्प्राउट होके मतलब उगना स्टार्ट हो गया और नए प्लांट्स ग्रो होने लगे। तो ये उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले जो सीड बाय मिस्टेक फेंकते थे तो उसमें से अगर ग्रो होता है नया प्लांट, तो व्हाई डोंट वी ट्राई टू सो दिस सीड्स, इन सीड्स को हम पर्पसली ग्रो क्यों नहीं कर सकते। सी इफ आई एम लाइकिंग एप्पल, अगर मुझे एप्पल पसंद है, अगर मुझे चीकू पसंद है, तो चीकू के प्लांट के पास में जाऊंगी, उस प्लांट में, उस ट्री में जितने भी चीकू है वो मैं खा भी लूंगी। मगर एक बार उसमें से खत्म हो गए चीकू, तो फिर तो मैं एट दैट टाइम आई वाज हंटर गैदरर एंड आई यूज्ड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर मैं एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते रहती थी, देयर वर नो स्पेसिफिक प्लेस फॉर मी टू लिव, करेक्ट। तो अगर शिफ्ट करके मैं चली जाऊं तो उस जगह पर जरूरी है कि मुझे चीकू का पेड़ मिलेगा, नहीं मिलेगा ना शायद। तो मुझे अगर वो पसंद है, इट इज माई फेवरेट फ्रूट अगर मैं बोलूं, तो मुझे क्या करना है, या तो उसी जगह पर रुकना है जब तक के नए चीकू उस पेड़ पर लग नहीं जाते, ग्रो नहीं हो जाते। अदरवाइज
जहां पर भी मैं जाना चाहूँ वहां पर जाकर मुझे उस चीकू के सीड को ग्रो करना है, तो मुझे वहां पर चीकू मिलेगा। सो दे स्टार्टेड ग्रोइंग दीज सीड्स, sowing these seeds, and these seeds gradually they turned into plants and trees and gave them fruits or other seeds. This was the turning point in history. Turning point means यहाँ से human life it completely changed, because in stone age or in the history, in the past में क्या था कि उनको जो अवेलेबल होता था वही वो खाते थे। अब क्या हो रहा है कि उन्हें क्या खाना है वो खुद ग्रो करना सीख रहे। इफ आई वॉन्ट टू ईट समथिंग आई विल ग्रो दैट फॉर माई ओन सेल्फ, अपने आप के लिए मैं खुद ही उसे ग्रो करूंगी। ये वो सीख गए, दे लर्न द स्किल ऑफ ग्रोइंग। ओके, so this was a turning point in history. What was the turning point in history? They learned that the new plants grow from the seeds. For the first time, people could grow their own food. क्यों ये turning point था? Because first time in the history, the mankind started to grow the crops whatever they wanted. They learned how to grow. Historians believe that farming first started in West Asia in an area called the Fertile Crescent. See here I am sharing the picture of that whatever is given to you in your textbook. अब यहाँ पर इस पिक्चर में नीचे एक बॉक्स में दिया गया है जिसमें ग्रीन कलर है। इस ग्रीन कलर का मतलब है फर्टाइल क्रेसेंट। Fertile crescent is nothing but fertile means good for growing crop and crescent is the area. तो ये इस मैप के अंदर जितना भी ग्रीन कलर, wherever you see green color, that area was good for growing crops. उस एरिया में क्रॉप्स बहुत अच्छे से ग्रो होते थे। See big blue color में आपको दिख रहा है पर्शियन गल्फ, कैस्पियन सी, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, तो ये सारे बड़े बड़े सी थे। देन यू कैन सी सम थिन ब्लू लाइंस। ये थिन ब्लू लाइंस जो है वो रिवर्स की हैं। सी यहाँ टाइग्रिस रिवर, यूफ्रेटिस, नाइल, ये सारी रिवर्स है। तो रिवर्स के जो सराउंडिंग एरिया है, द एरिया विच इज सराउंडेड बाय रिवर are fertile because they get more water. उन एरियाज में वाटर ज्यादा होंगे तो इस वजह से ये एरिया बहुत फर्टाइल हो जाएगी। फर्टाइल मीन्स गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो उन एरियाज में देखिए यहाँ मेसोपोटामिया है, उसमें देखिए ग्रीन कलर पूरा दिख रहा है। यस, तो वो क्या है कि ये पूरा एरिया बहुत फर्टाइल था, गुड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। तो हिस्टोरियंस का ये मानना था कि वेस्ट एशिया मींस एशियन कॉन्टिनेंट में वेस्ट का जो पार्ट है यहाँ सबसे पहले फार्मिंग स्टार्ट हुआ था इन अ फर्टाइल क्रेसेंट। वेस्ट एशिया में कहा फर्टाइल क्रेसेंट वाला जो एरिया है वहां पर फार्मिंग स्टार्ट हुआ था। क्लियर? ओके। नाउ विद द स्टार्ट ऑफ फार्मिंग people no longer needed to move around in search of food. As they started farming, now is it required for them to move from one place to another in search of food? Food को ढूंढते ढूंढते एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होना जरूरी है अब? No, because whatever they wanted to eat, they started growing it in the place where they were living. वो जहाँ स्टे करते वहीं पर वो ग्रो कर देते थे। उनको जो खाना है वो वहीं पर ग्रो करना है और खाना है। तो ढूंढने के लिए कहीं और जाने की जरूरत है नहीं है। Now, since crops needed a long time to grow, people had to settle down in a place where they had planted their crops. Now, as they started growing crops, जैसे जैसे crops grow करने लगे, तो वैसे वैसे क्या होगा? आप क्रॉप आज अगर आप सीड को सो करोगे तो कल ग्रो हो जाएगा?
कल उसमें से नया सीड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो क्या करना है कि उसके लिए वेट करना पड़ता है फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 4-5 महीने वेट करना पड़ता है, तब वो ग्रो होता है एक प्लांट। सो व्हाट दे डिड, दे हैड टू स्टे इन दैट प्लेस। अगर मैं आज यहाँ पर इस जगह पर कोई सीड ग्रो करती हूँ और मैं बाद में कहीं और, एज आई वॉज अ वांडरर, अर्ली मैन वॉज वांडरर, तो मैं वांडर करते करते कहीं और किसी और जगह चली जाऊँ तो क्या होगा कि जो सीड मैंने ग्रो की थी उसमें जो फ्रूट आएगा वो फ्रूट कोई और खा जाएगा। तो अगर मुझे खाना है वो फ्रूट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे उसी जगह पर रहना होगा। उस सीड को जो मैंने सो किया है उसे एवरीडे उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको पानी डालना पड़ेगा, तो ही होगा ना। सो नाउ व्हाट दे वर सपोज्ड टू डू, नाउ आर दे सपोज्ड टू वंडर हियर एंड देयर। अब वो इधर उधर घूम सकते हैं? नहीं घूम सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद के लिए उस एरिया में फूड ग्रो किया है, तो उन्हें वहीं पर रहना है जब तक वो ग्रो ना हो जाए। सो इन दिस वे दे स्टार्टेड सेटलिंग देमसेल्व्स, खुद को सेटल करना स्टार्ट कर दिया। सेटल मतलब एक ही जगह पर रहना है। अब इधर उधर नहीं घूमते। आप आज इधर उधर वांडर करते हो या एक ही हाउस में रहते हो? एक ही हाउस में रहते हो ना, दैट मीन्स यू आर लिविंग अ सेटल्ड लाइफ। इसका मतलब है आप एक सेटल्ड लाइफ रह रहे हो। तो वो लोग क्योंकि उन्होंने क्रॉप्स ग्रो किए हैं खुद के लिए, तो दे हैड टू लीड अ सेटल्ड लाइफ नाउ। As groups of people started settling in one place together, the first village came into being. जैसे जैसे कोई एरिया है वो बहुत फर्टाइल है, तो वहां जैसे मैं क्रॉप्स ग्रो करती हूँ, तो हो सकता है कि कोई और भी उसी एरिया में, बाजू के एरिया में जहाँ खाली जगह हो, तो उसने वहां पर अपने क्रॉप्स ग्रो किए। तो ऐसे करके करके ग्रुप ऑफ पीपल एक दूसरे से नजदीक नजदीक एरिया में रहने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहां पर क्रॉप्स ग्रो की थी अपने अपने। तो अब उसका ध्यान रखने के लिए, उन क्रॉप्स को ग्रो करके फिर उन्हें यूज करने के लिए उनको वहां रहना पड़ा। सो नाउ दे स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स एंड ऐसे करके फर्स्ट विलेज स्टार्ट हुआ। सबसे फर्स्ट विलेज स्टार्ट हुआ इसी वजह से। करेक्ट? विलेज मतलब जहां पर बहुत सारे लोग, हमारे टाउन्स एंड सिटीज की तरह नहीं, कम लोग होते हैं, मगर जो ये वंडरर्स थे वो सेटल होके एक एरिया में, एक ग्रुप में रहने लगे, क्योंकि वो लैंड फर्टाइल थी। तो इस तरह से विलेज का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? विलेज का। एज फार्मिंग मेथड्स इम्प्रूव्ड ओवर टाइम, जैसे जैसे फार्मिंग में भी वो कुछ नया नया सीखते गए, दे इम्प्रूव देमसेल्फ, देयर स्किल वाज मोर डेवलपिंग, उनकी स्किल बढ़ने लगी फार्मिंग में। पीपल वर एबल टू ग्रो मोर फूड देन दे नीडेड, वैसे वैसे उनको जितना चाहिए फूड उससे ज्यादा ग्रो करने लगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर वेजिटेबल्स में फॉर एग्जाम्पल 1 वीक के लिए 2 to 3 कैबेज चाहिए, मगर मैंने ग्रो किए तो 10-15 कैबेजेस हैं, तो उन एक्स्ट्रा कैबेजेस का मुझे कुछ करना पड़ेगा, है ना। मेरे में स्किल थी, मुझे आता था, इसलिए मैंने एक्स्ट्रा ग्रो कर दिए। तो दे स्टार्टेड ग्रोइंग एक्स्ट्रा। दिस एक्स्ट्रा और सरप्लस फूड, सरप्लस मतलब जो हमारी नीड, हमारी रिक्वायरमेंट से एक्स्ट्रा है उसे सरप्लस कहेंगे। क्या कहेंगे? सरप्लस। सो दिस एक्स्ट्रा और सरप्लस फूड नीडेड टू बी स्टोर्ड, इस सरप्लस या एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वीट अगर आप ग्रो करते हो तो आपने आज आपको कितना यूज करना है? क्या सिर्फ उतना ही ग्रो करोगे? नहीं। तो क्या करोगे? ग्रो तो आपने बहुत सारा कर दिया और आज आपको जितना यूज करना है उतना यूज भी कर लिया, तो एक्स्ट्रा वाला जो बचा हुआ है उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। करेक्ट? तो उनको स्टोर करना आप सीखना पड़ेगा कि कैसे स्टोर करते हैं।
क्योंकि एक्स्ट्रा बन गया है तो उसे स्टोर करना है। आपकी मम्मा भी ऐसे करती है, एक्स्ट्रा फूड बन जाए तो उसे स्टोर करके रख देती है। तो इन लोगों को भी स्टोर करना सीखना पड़ेगा। पीपल स्टार्टेड मेकिंग पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स, फर्स्ट आउट ऑफ स्टोन एंड देन आउट ऑफ क्ले। इनिशियली उन फूड आइटम्स को, उन क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए वो स्टोन्स में से कुछ ना कुछ पॉट जैसा या कुछ बनाने लगे, क्योंकि दे वर नॉट नोइंग एनीथिंग एक्सेप्ट स्टोन्स। स्टोन्स के अलावा किसी से बनता भी है या नहीं वो उन्हें नहीं पता। तो इनिशियली स्टोन्स में से उन्होंने पॉट्स बनाए या कुछ ऐसे वेसल बनाए जिनमें वो स्टोर करने लगे एक्स्ट्रा जो क्रॉप्स ग्रो किए थे। एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली उन्होंने सीख लिया कि मिट्टी को गीला करके उसको भी शेप देके आप पॉट्स बना सकते हो, राइट? These clay pots were baked in sun or in fire to make them stronger. तो इनिशियली उन्होंने देखा कि आप इस क्ले के पॉट को जब बनाते हो तो वो गीला होता है, क्योंकि मिट्टी गीली करनी पड़ती है। तो वो गीली मिट्टी के अंदर आप कुछ स्टोर कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो टूट जाएगा, गीला है इसलिए। तो उन्होंने सोचा कि इसको ड्राई करते हैं पहले, ड्राई करने से स्ट्रांग हो जाएगा। तो इनिशियली उन्होंने उसको सनलाइट में ड्राई करना स्टार्ट किया, फिर उससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई। जो फ्रेश क्ले होता है उसका पॉट एकदम वीक होता है, मगर ड्राई होने के बाद, सनलाइट में ड्राई होने के बाद वो स्ट्रांग हो जाता है। फिर उसके बाद उन्होंने ट्राई किया कि इसको फायर में, क्योंकि फायर में आग में डालने से वो जल्दी ड्राई हो जाएगा, तो उन्होंने फायर में रखा तो ये और स्ट्रांग हो गया। सो दे लर्न दैट दीज क्ले पॉट्स बिकम मोर स्ट्रॉन्गर व्हेन दे आर केप्ट इन सन और बेक्ड इन द फायर। Once the wheel was invented, potters used it to make smoother and better pottery. फिर जब व्हील का इन्वेंशन हुआ तब उन्होंने ये सीख लिया कि इस व्हील को यूज करके अच्छे पॉट्स बनते हैं, अच्छे शेप आते हैं। पहले तो क्या है, वो रैंडमली शेप देते थे, मगर इस व्हील को, पॉटर्स व्हील जो होती है उसको यूज करके, आपने देखा होगा कुम्हार के पास होता है पॉटर्स व्हील, तो उस पॉटर्स व्हील को यूज करके उन्होंने सीख लिया कि पॉट्स में अच्छे शेप भी आ जाते हैं, पॉट्स का जो टेक्सचर है वो भी स्मूथ हो जाता है, और पॉट्स इजीली और फटाफट जल्दी बनते हैं, टाइम नहीं लगता है बहुत ज्यादा। अगर पॉट्स बनाने तो ज्यादा टाइम नहीं लगता है। With villages having surplus food, all the people did not have to work in the farms. क्योंकि अब उन छोटे छोटे विलेजेस में एक्स्ट्रा फूड ग्रो करने लगे थे कुछ लोग, करेक्ट? तो सारे के सारे लोगों को अपने अपने फार्म में क्रॉप्स ग्रो करना जरूरी था? नो। क्यों? क्योंकि जिसने अपने हिसाब से बहुत एक्स्ट्रा फूड ग्रो किए हैं वो अपना फूड किसी और को दे देगा ना, कि भाई ये मेरा बहुत एक्स्ट्रा बन गया है तो अब आप ले लो। तो इस वजह से जो ये फार्मिंग नहीं करता है वो दूसरे से अपनी फूड के लिए क्रॉप्स को, दूसरे फार्मर से अपने डेली बेसिक नीड के लिए क्रॉप्स को ले लेता है, और बदले में क्या देगा? पैसे थे उस जमाने में? नहीं थे, तो बदले में कुछ तो देना पड़ेगा ना। तो वो ऐसा करता होगा शायद कि वो क्या करता था, ये जो है वो फार्मर क्रॉप्स ग्रो करता था, तो उसे स्टोर करने के लिए पॉट्स जो है वो बनाने का टाइम नहीं था फार्मर के पास। तो ये सामने वाले और एक जो उसका होगा नेबर, उसने क्या किया, उसने पॉट बनाने का काम किया होगा। तो वो फार्मिंग नहीं करता था, वो पॉट बनाता था, तो वो एक्स्ट्रा पॉट बना के इसको दे देता था और ये एक्स्ट्रा फूड ग्रो करके अपने नेबर को दे देता था, तो दोनों का काम हो जाता है। So, while some worked in fields, others had free time to do things such as making pottery. So, कुछ लोग फार्म्स में काम करते थे, करेक्ट, और उनका जो एक्स्ट्रा होता था वो अपने बाकी के नेबर्स को दे देते थे, और नेबर्स
मीनवाइल में क्या करते थे, वो पॉटरी जैसे एक्स्ट्रा के कुछ नए नए स्किल्स डेवलप करने लगे और नए स्किल डेवलप करके अपने गुड्स को, ये अपना गुड दैट इज फूड क्रॉप इसको देता था, ये अपना जो पॉटर है वो अपनी पॉट्स को अपने नेबर को दे देता था. दे स्टार्टेड एक्सचेंजिंग गुड्स. ड्यूरिंग दिस टाइम एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. इस टाइम में, इस पीरियड में एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया जाता था. डोमेस्टिकेट मतलब टू कीप देम फॉर यूज. डोमेस्टिकेट मतलब वाइल्ड एनिमल्स विच वर मेड टू ओबे एंड वर्क फॉर पीपल. एनिमल्स जिसको हम ट्रेन करके हमारे हिसाब से हमारी सारी बात माने, इस तरह से ट्रेन करके जिन एनिमल्स को रखते हैं ना, उनको डोमेस्टिकेट कहते हैं. क्या कहते हैं? डोमेस्टिकेट करना. डॉग है तो उसे अच्छे तरह से ट्रेन कर दो तो वो आप जो कहोगे वो मानेगा. तो इस तरह से डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. डोमेस्टिक एनिमल्स सच एज शीप, काउज एंड गोट्स गिव मिल्क, मीट एंड वूल. तो ये डोमेस्टिक एनिमल्स से उन्हें क्या हेल्प होती थी कि ये शीप है, काव है, गोट है, तो उससे उन्हें मिल्क, मीट एंड वूल मिलता था. मिल्क को पीने के लिए, मीट खाने के लिए एंड वूल, वूल को अपने आप को वुलन के कपड़े बनाकर वार्म रखने के लिए यूज करते थे. कपड़े बनाना तो नहीं आता था मगर उस वूल से वो धीरे धीरे वीविंग सीख गए होंगे और अपने लिए कपड़ा बनाते होंगे. Some people kept large herds of domestic animals. कुछ लोग थोड़े बहुत डोमेस्टिक एनिमल्स नहीं बट बहुत सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को रखना स्टार्ट कर दिया होगा. करेक्ट? तो लार्ज नंबर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स दे स्टार्टेड कीपिंग विद देमसेल्फ. दे एक्सचेंज द मिल्क, मीट और वूल फ्रॉम दीज एनिमल्स फॉर द फूड ग्रोन बाय द फार्मर्स. तो कुछ लोगों ने पॉटरी बनाना स्टार्ट कर दिया, कुछ लोगों ने एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया और फिर वो क्या करते थे, एज आई टोल्ड यू, एक्सचेंज करते थे. देयर वर नो मनी, मनी वाज नॉट देयर. सो व्हाट दे डिड, द फार्मर गेव दीज पीपल क्रॉप्स, दे गेव हिम मिल्क, मीट और वूल, एंड when it was with potter they gave them crops and got pots from the potter. और यहाँ पर भी ऐसे ही, पॉटर को अगर मिल्क चाहिए तो उस मिल्कमैन को वो क्या देगा, पॉट देगा. और ये मिल्क जो डोमेस्टिकेट करता है एनिमल्स को, वो अपने एनिमल के मिल्क को एक्सचेंज करेगा इसके साथ. तो इस तरह से they started living their life. In this way the farming started. Farming gave early humans a settled life. Potter's wheel was useful for making pots. They learned exchange of goods. Goods को exchange करके use करना start कर दिया. Correct? And they also started to store the food. Food को store करना start कर दिया. एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट कर दिया. ये सारी चीजें फार्मिंग से स्टार्ट हुई. ओके, सो हियर आई कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन. अलोंग विद दिस सेशन आई एम सेंडिंग अ वर्कशीट विच इज फिल इन द ब्लैंक्स बेस्ड. So you will go through the textbook, find the answers, write the answers in worksheet. Okay, in my next session we will start discussing regarding the invention of wheel. Bye.